All right, students, Assalamu alaikum. Um, can you hear my voice and you can look at the slides? Ji, Ihtisham, Shahriar. Yes, sir. All right, before we start, do you have any questions from the previous material? No, sir. All right, just to put us in the right sequence of things, in this previous class with two classes, we used Python and look at the two examples, exclusive OR and handwritten digit recognizer on MNIST subset. So we did two examples for multi-stage neural networks using Python. Then we did two examples using multi-stage neural networks using Keras. The two examples were handwritten digit recognition for MNIST full data set and the 10 class data set of C for 10, recognizing among the 10 different objects. So this is what we covered in our last couple of lectures. We learned about basically multi-stage neural network. They had the deep layer. We added few layers in addition to the perceptron, which was just input and output layer. In this case, we added the hidden layer, increase the depth, and call that multi-stage neural networks, and solved some typical good examples using Python from the scratch and using Keras library, which is an advanced library for implementing deep neural network. So we learned about it. Okay. After that, we had started introducing, and to continue with that, is the convolutional neural network. We said that, okay, we have learned. Do you see the difference between the special word convolutional neural? It is still multi-stage in terms of number of stages. It has hidden layers. So we have that thing there. But it differs, as I mentioned, in a big way, a revolutionary change from those normal multi-stage neural networks. Few things very prominent. In multi-stage neural networks, we had all-to-all connectivity, fully connected between all the layers. And as the size of our problems or images increased, it becomes impossible to carry out the training and, of course, after testing, where you had big size of images, which means input at each layer, the length of that vector, input vector, continuing till the end, becomes very large. And between the layers, if there is a full connectivity, so if there were a vector of n elements, so we had the n square problem at our hand. When the numbers increase, it becomes impossible in terms of time, a lot, very long time taking thing. Number one, it was slow, but that is not enough that it was slow. So we said, okay, we try to make it fast. We make it fast by reducing the number of links between the layers.
like we don't connect all to all like the previous case. What we are saying is we are trying to gain in many major ways over here. We said there was a problem with multi-stage interconnection networks. This is multi-stage interconnection networks, having some deep layers and maybe output classes, whatever is the size of the size of the image increase this thing the, because we give the raw pixels at this stage feature set in this case is the raw pixel. So for image, you start with the raw pixel. Then this connectivity over here was fully connected, all to all. Each each node here got inputs from everybody. This like this, right? So that was true for all nodes. So all to all connectivity, order of n square. And this continued for all the layers, this fully connected, fully connected. So we said fully connected. Many a times people say, okay, fully connected or all to all connected is costly, but it is very efficient, which is true for our network connections. जहाँ network connections में हमें ज़्यादा efficient कनेक्टिविटी चाहिए होती है, हम क्रॉस बार या फुल्ली कनेक्टेड को इस्तेमाल करते हैं और स्पीड गेन करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इट्स वेरी कॉस्टली। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वाली अप्रोच ने नॉट ओनली कि ये फुल्ली कनेक्टेड की जगह लेस कनेक्टेड ऑप्शन इस्तेमाल किए। इन्होंने कहा कि हम इन बिटवीन यहाँ फुल्ली कनेक्टेड नहीं करेंगे, हम सिलेक्टिवली कनेक्टेड करेंगे। तो सिलेक्टिवली कनेक्टेड करने का मतलब यही होता है कि यू आर काइंड ऑफ कंप्रोमाइजिंग द स्पीड, सिलेक्टिवली कनेक्टेड कर रहे हैं। आपकी कनेक्शन ऑल टू ऑल नहीं है, बल्कि आप मोर फोकस्ड टू सच डिजाइन टाइप कनेक्टिविटी है, मच लेसर नंबर ऑफ लिंक्स आप दे रहे हैं इन दी स्टेजेस। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि नॉट ओनली कि ये कनेक्शंस कम करके आपने कॉस्ट कम की है, ये जो लेस कनेक्टेड ऑप्शन है इट इज आल्सो मोर एफिशिएंट एंड गिव्स यू मच हायर परफॉर्मेंस। दैट इज इंटरेस्टिंग। अगर खाली फुली कनेक्टेड को हम थोड़ा कम करके और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते तो वो कोई कमाल ना होता, वो हम हमेशा ही करते हैं। लेकिन इस केस में अप्रोच कन्वोल्यूशन वालों ने क्या की कि इंटर स्टेज कनेक्टिविटी को बचाया इन टर्म्स ऑफ लिंक्स, लेकिन साथ ही एक टेक्निक में ऐसी इंप्रूवमेंट लाए कि परफॉर्मेंस बिकेम मच 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 हायर। So that make convolutional approach of neural network handling a big breakthrough, and they are now the ways of solving image processing problems, all image related things. They are the um, best options considered now for solving all the problems. So while we don't say that all the knowledge we were gaining all along has gone waste, no, all the concepts of layers and connectivity and training and splitting for training and testing and finding the performance metrics, etc. Those ideas or concepts remain valid, but we have a breakthrough way of implementing them where cost is reduced and efficiency or performance is tremendously increased. So that made us to focus for these deep learning people because of those image things. This length was very large. The layers were for the deep neural networks. Hidden layers were very large. With time, practically these both the things grew very big. So this is the thing which we follow. Okay. अब इसमें भी हम
हम एग्जांपल्स देखेंगे। हमारी मोस्ट फेवरेट अगेन हम इमेज प्रोसेसिंग की ही एग्जांपल्स देखेंगे। इमेज प्रोसेसिंग इज इमेज computer vision and image processing are the most beneficiary of these approaches because their computation times are very high and their need of processing is tremendous. So हम उसी की एग्जांपल देखेंगे जहाँ इसको सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट मिलता है इसका। और हम पहले की तरह पहले फ्रॉम द स्क्रैच टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स एंड एवरीथिंग, फर्स्ट वी विल डू इट विद प्योर पाइथन, फ्रॉम विद पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, ताकि हमें हर हिस्से के पार्ट को क्लियर हो जाए उसकी वर्किंग इन डिटेल। और फिर हम अपनी एज यूजल केरास लाइब्रेरी विच इज़ पावरफुल लाइब्रेरी फॉर डूइंग दिस थिंग उसको यूज़ करेंगे। लेकिन एज आई टेल यू, जब आप हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं या किसी भी जगह करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे सिलेक्शन चॉइसेस for optimizing your architecture and speeding up your problems and आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो उन choices में अगर आपने इनको at the you have seen under the hood by at the time of learning basics and using implementing them in detail with Python, so then you are a very good designer of their architecture and selection of optimization methods. So that is how these things tie up together. All right. So जैसे मैंने आपको इसमें ये we have discussed these points. So हम अगर जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये सेलियंट पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया था, वो हम खाली यहाँ देख लेते हैं। हम अपना ये पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ये हमारे 3 हमने लिस्ट किए जो हमने अभी बातें की थी, तो उसके लिए हम किस तरह बेनिफिट्स उठाएंगे CNN से। सो अब क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो उसमें detecting edges from raw pixel data in the first layer and use these edges to detect shapes in the second layer and use these shapes to detect higher level of features such as facial structure, parts of a car, etc. तो अब हमने 2 बातें तो देख ली CNN की। एक, कनेक्टिविटी को हमने कम किया, कॉस्ट रिड्यूस की। फिर हमने एल्गोरिदम की स्मार्टनेस के ज़रिए से परफॉर्मेंस भी बढ़ा ली, टाइम कम किया, कॉस्ट कम की और परफॉर्मेंस बढ़ाई। ये 3 चीज़ें हम देख चुके हैं। चौथी क्या है, इस काम को करने के लिए इनकी जो अप्रोच है वो हायरार्किकल है, जो मैंने यहाँ पे बताई कि आप शुरू के लेयर्स में हायरार्किकल में जो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये अगर आपके लेयर्स हैं जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर हायरार्किकल वे ऑफ लर्निंग है। ये सारी परफॉर्मेंस और ये सब कुछ कैसे मिली कि आपने कहा पहले मैं यहाँ रा इमेज से शुरू करूँगा और मेरे पिक्सल्स होंगे विच हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, और इससे मैं लेट से इमेज अगर मैंने डायरेक्शन की तो पहले मैं खाली इसमें से एजेस फिल्टर अप्लाई करके, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स जिनको इमेज पे आप अप्लाई करें तो आप उनसे एजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं इस इमेज के बिहेवियर। तो पहले स्टेप पर हमने यहाँ से यहाँ तक एजेस को डिटेक्ट किया, सिंपल वाला काम किया, बेसिक काम, लोअर लेवल एक्टिविटी की एजेस डिटेक्शन, एज डिटेक्शन एज। अच्छा, फिर यहाँ पर अब ये इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ये वाला रॉ डाटा कन्वर्टेड इनटू a recognition of this edges in that, only that level. अब अगले स्टेप के पास हायर लेवल ऑफ वर्क है
और वो फोकस कर रहा है कि इफ योर इनपुट हेयर हैज एज इंफॉर्मेशन, हाउ कैन योर नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर कैन कंसिडर ज्वाइनिंग ऑफ दीज एजेस टू डिटेक्ट शेप्स। तो ये अब एजेस के बजाय शेप्स की तरफ, ये लेयर शेप पे फोकस करेगी, एजेस टू शेप्स। ओके, फिर उसमें उससे आगे जाएंगे। अब आपके पास शेप्स हैं, तो फिर हायर लेवल फीचर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, फेशियल स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ ए कार। तो फिर आप स्ट्रक्चर लेवल पे, शेप से गए आप फीचर्स एंड स्ट्रक्चर लेवल पे चले गए अगली लेयर्स में, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो दैट विल मीन्स के आपको देन यू फाइंड द ऑब्जेक्ट, डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, देन टोटल ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने नंबर एक, नंबर ऑफ कनेक्शंस कम करके कॉस्ट कम की, एल्गोरिदम की स्मार्टनेस को इस्तेमाल करके स्पीड भी फास्ट की, परफॉर्मेंस बेहतर की, और अप्रोच क्या थी, हायरार्किकल। आप फिल्टर्स, जिनको हम फिर बाद में हम ये कन्वोल्यूशन का वर्ड आएगा, कन्वॉल्विंग फिल्टर्स आप इन पर इस्तेमाल करते हैं, और उनके ज़रिए से ग्रेजुअली आप किसी चीज़ को लर्न करने में हायरार्किकल अप्रोच इख्तियार करें। ये इनका तरीका है। तो ये हमने मेजर थिंग, और उसको अगर मैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम इसको फंक्शंस की शक्ल में कहें, अगर आप समझते हो, तो ये हायरार्किकल का ये मतलब है कि पहले अगर ये रॉ एक्स था, तो एक फंक्शन आपने इस्तेमाल की, उस पर एच एक्स बना लिया, और फिर एच एक्स पे एक और फंक्शन इस्तेमाल की, जी एच एक्स, फिर उसके रिजल्ट पर एक और फंक्शन अप्लाई की, एफ। तो जिस तरह हम फंक्शंस पर वन आफ्टर द अदर अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली, उस तरह का बिहेवियर हमने ये हायरार्किकल वे में इख्तियार किया है इन द कन्वोल्यूशन जो है। फिर ये भी बात की थी मैंने कि पिछली दफ़ा, कि कन्वोल्यूशनल और क्रॉस कोरिलेशन, हम कन्वोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। कन्वोल्यूशन और क्रॉस कोरिलेशन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर हम कई जगह लिटरेचर में वो वर्क देखें, मैनी पीपल सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स आर यूज क्रॉस कोरिलेशन, दे हैव pretty similar coordination, similarity for achieving objectives. So don't think कि अगर आपको कहीं क्रॉस कोरिलेशन वाले प्रोसेस का जिक्र हो, तो you feel that something absolutely different on you. It's very similar in terms of processing. Some mathematical thing which I talked last time. तो अब हम इसके लिए, ये हमारे स्टेप्स हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब हमारा एक रोल, डू कन्वोल्यूशन प्ले इन डीप लर्निंग, ये हमने देख लिए हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे बाय लुकिंग एट इट्स डिटेल्स एंड द कोड्स फॉर दिस। एम इनका तरीका यही है, इसकी जो अब स्पीडिंग अप, और ये मैंने बताया था जो हायरार्किकल वे में, उसमें अब लर्निंग क्यों हमने सेविंग की है, एल्गोरिदम की अप्रोच क्या है। इन्होंने कहा कि बजाय ईच node gets the input from all other node and sum them, multiply and add them, जो हम पहले करते थे, उसकी जगह each node जो यहाँ कन्वोल्यूशनल फिल्टर है, इन्होंने कन्वोल्यूशन इस्तेमाल की, और इन्होंने कहा इमेज के ऊपर हम कन्वोल्यूशन के फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। गुड लक कि आप कन्वोल्यूशन को क्यूडा सी में अच्छी तरह इन अनदर कॉन्टेक्स्ट देख चुके हो। तो आप टेम्पलेट फिल्टर का होता है एक साइज का, उसको आप पूरे इमेज के ऊपर स्कैन करते हो। बेसिकली कन्वोल्यूशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक ये इमेज है और ये हमारा एक फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर जिसने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया, एज डिटेक्टिंग और शेप डिटेक्टिंग, और हमने वो भी
प्रोसेसेस आप लोगों ने किए थे क्यूडासी से कि आप स्मूथिंग करना चाहते हैं, आप एज डिटेक्शन करना चाहते हैं, तो हर टास्क के लिए फिल्टर बने हुए होते हैं फॉर ऑफ स्मॉलर साइज। ये फिल्टर आप इस इमेज के हर हिस्से पर रख कर और उसकी डॉट प्रोडक्ट और सम करते हैं, और इस तरह आप पूरे इमेज को एक प्रोसेस और फिल्टरिंग से गुजार के इम्प्रूव करते जाते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्रेजुअली। तो इसमें उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है कि अगर ये जो फिल्टर है, ये तो एक पर्टिकुलर जोन पे ऑपरेट कर रहा है, अपने अपने एक एक रीजन पर, ये इस रीजन से इसका ताल्लुक इन चीज़ों से है। फिर यहाँ फिल्टर जब आपने रखा है फर्ज करो, तो वो इस रीजन के उससे ताल्लुक करता है, उसके डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अब हर उस पर जो उस फिल्टर से रिलेटेड सेट ऑफ कैलकुलेशंस चाहिए, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो अब इस वेट्स में। फिल्टर के जो ये पैरामीटर्स हैं और फिल्टर के जो ये सिलेक्शन है कि विच फिल्टर विल गिव यू ए गुड रिजल्ट इन द नेक्स्ट लेयर, then which filter will give you a good result in the next layer. So selection of the filter and setting up the values for them becomes the training thing, कि आप हर लेयर पर एक आपके बंच बॉक्स ऑफ फिल्टर्स है, और आपका काम यह है कि आप उन फिल्टर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर ए लेयर, और उसको जैसे आप तमाम वेट्स की सेटिंग करते थे, आप उस फिल्टर के वेट्स या वैल्यूज की सेटिंग कर रहे हैं। तो आपका बड़ा लोकलाइज्ड हर नोड के लिए जोन एरिया डिफाइन हो गया, बजाय इसके कि एवरी नोड कंट्रीब्यूट्स टू दैट। इट्स मोर ऑफ अ फिल्टर सिलेक्शन, फिल्टर ऑप्टिमाइजेशन फॉर दिस टास्क। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने मल्टी स्टेज न्यूरल नेटवर्क में देखा है कि इस मामले के लिए हम बैक प्रोपगेशन इस्तेमाल करेंगे टू गेट द बेटर रिजल्ट्स एट द आउटपुट। विच फिल्टर इन विच लेयर विल गिव यू द बेटर रिजल्ट, वो आपका हिस्सा होगा बाय थ्रू द बैक प्रोपगेशन। एरर को कम करने के लिए जो हम एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है, दैट एल्गोरिदम रिमेन्स एज इट इज। मगर अब उस एल्गोरिदम का काम ऑल द वेट्स फुली कनेक्टेड के एडजस्ट करना नहीं है, बट के सिलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिल्टर है। तो ये टास्क बड़ा फोकस्ड हो गया, काम कम हो गया, और परफॉर्मेंस बढ़ गई। ये इसलिए हुआ। ठीक, जैसे हम स्मूथिंग ब्लरिंग करने के फिल्टर्स हैं, और इस तरह हम देखेंगे फिल्टर्स की भी टाइप्स क्या हैं और कैसे हमने करना है। ये पार्ट वो है कि जब आप यही फिल्टर को रखकर और इमेज पे करते हो, तो वो जो कैलकुलेशन हम करते थे, जो आपको मालूम है, दैट इज यू टेक द element wise multiplication of all the elements and then sum them together। यानी हम उसमें क्या करते थे, ये इमेज है और इसमें किसी, ये फिल्टर यहाँ से शुरू होगा, हर जगह फर्ज को यहाँ से शुरू हुआ, तो हमने हर जगह इस फिल्टर की वैल्यूज यहाँ से ली, और इसके नीचे जो इमेज की वैल्यूज हैं उनसे उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया, और फिर इन सब को ऐड किया। ठीक, तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड द समिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स is the applying of filter on that part of the image। और फिर हम इसको स्लाइड नेक्स्ट करते हैं, जितना हमारा स्टेप है। स्टेप हम वेरी रख सकते हैं। हमने पहले जो सारे हमेशा किए हैं वो सिंगल स्टेप से किए, कि एक स्टेप आगे मूव किया हॉरिजॉन्टली, फिर यही कैलकुलेशन की, फिर आगे एक स्टेप मूव किया, फिर यही कैलकुलेशन की, फिर एक, और फिर आउटपुट मैट्रिक्स में हम ये जो एक कैलकुलेशन करते हैं, कन्वोल्यूशन जिसको मैं कहूँगा, कन्वोल्यूशन की जो कैलकुलेशन करते हैं, विच इज़ मल्टीप्लाइंग एलिमेंट वाइज एंड एडिंग, इस जगह अगर हमने ये फिल्टर रखा है, तो इसका आंसर जहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है फिल्टर का, उस जगह आप आउटपुट मैट्रिक्स में वो आंसर लिख देते हैं। तो जहाँ पे भी किसी वक्त फिल्टर रखें,
फिल्टर के जिस तरह प्लेसमेंट, यहाँ एंकर हम इस केस में मैंने आपको जब QC बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि एंकर पॉइंट हम ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर भी कर सकते हैं। हमने वहाँ कोड की ईज के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल किया था। मैनी टाइम्स पीपल यूज द सेंटर को, कि भाई सेंटर को एंकर कर रहे हैं उस पॉइंट पे जहां आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस केस में हम ये सेंटर ही का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस जगह ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई और ऐड की है उस जगह यहाँ आउटपुट मैट्रिक्स में आंसर लिख देंगे, जो कि स्केलर आंसर है। इन तमाम वैल्यूज को, अगर ये फिल्टर 3 by 3 है तो 9 एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन विल गिव यू दिस। ठीक है। तो हमारा इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर हमारा फिल्टर के है, के नाम ले लें कर्नल या फिल्टर, और दूसरा हमारा इमेज जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, इमेज लेट्स आई है, तो हम आई और के को कन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और कन्वॉल्व में ये उस लोकेशन पर जो वैल्यूज़ हैं आई की, जो यहाँ पर आई का एक्स वाई है उससे ये ऑफसेट लेके ये लूप हमारा चलेगा, जिसका साइज इस के साइज के बराबर होगा, और उसमें इमेज की वैल्यूज उस लोकेशन से ली जाएंगी और फिल्टर की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई ऐड की जाएगी। ओके, ये इसकी कैलकुलेशन। तो अब हम इसको ये जो है इसका वो कोड देख लेते हैं। इन चीज़ों को देखने में लेट्स लुक एट द कोड। ये जो मैं अभी आपको मैथमेटिकल बता रहा था वो ये है कि ये और यहाँ पर वही आपको मैंने कहा क्रॉस कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन दोनों में काफ़ी कॉमनैलिटी है, और बस डिफरेंस वो एक ऑफसेट माइनस के साथ ले रहा होता है और दूसरा ऑफसेट प्लस के साथ ले रहा है। बट वही आप इमेज के mn को लेकर और उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये लूप चलाते हैं आप आई जे के साथ, और फिर ये है m और n आपका जो साइज है उस साइज के ऊपर, आपके कर्नल के ऊपर ये k और i इमेज, इनका आप इनको कन्वॉल्व करते हैं। तो वो मैट्रिक्स की जो ये दो डायमेंशंस हैं वो यूज़ करते हुए इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं ऑन दोज 2 डायमेंशन। इसको हम आई के की शक्ल में लिख रहे हैं। एक आई के का, अगर आई जे लोकेशन पर आप हैं तो ये कैलकुलेशन है, और इस तरह फिर आप ये कैलकुलेशन हर आई जे के पॉइंट पे करेंगे। तो ये क्रॉस कोरिलेशन में इसमें माइनस के साथ इस्तेमाल कर लिया, इसमें प्लस के साथ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आई और के की डॉट प्रोडक्ट एंड एडिशन। अच्छा, अब द वर्ड आपको एक नज़र आएगा बहुत इसमें अक्सर, तो नथिंग वेरी बिग मैट्रिक्स एंड टाइनी मैट्रिक्स। बिग मैट्रिक्स इज अवर दैट इमेज मैट्रिक्स, जो हम कह रहे हैं ये हमारा इमेज है ह्यूज, और उस पर कर्नल या फिल्टर का जो ये है जिसके साइज उस तरह के हैं 3 by 3, 7 by 7, 5 by 5, और ये कोई थाउजेंड्स में है इसकी डायमेंशन। तो इसको हम ये इस केस में ये कर्नल को टाइनी और इमेज को बिग मैट्रिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे। और वही कि ये टाइनी मैट्रिक्स इसके ऊपर स्कैन करेगी, पूरे उसके ऊपर हॉरिजेंटली चलेगी स्टेप बाय स्टेप, फिर एक रो पूरी हो जाएगी, फिर वर्टिकली यानी यहाँ से ये पहले पूरा ये जो था कर्नल वो इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, चलता जाएगा, और फिर जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा जो एंड तक, तो फिर ये यहाँ इधर एक नीचे स्टेप, अगर स्टेप 1 है तो यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर नीचे ये रो को पूरा करेगा, और फिर नीचे, तो ये पूरे इमेज के ऊपर ये टाइनी मैट्रिक्स स्कैन थ्रू करके ये फिल्टरिंग का सॉल्यूशन निकालेगी। अच्छा, अब ये हमने ब्लरिंग सीखी, स्मूथिंग आपने सीखी थी। इवन स्मूथिंग में या ब्लरिंग में भी एवरेज स्मूथिंग
कि सारे पॉइंट्स को इक्वल वेट दी जाए। गॉसियन स्मूथिंग, रैंडम वेट दिया जाए गॉसियन। मीडियन स्मूथिंग, मीडियन बेस्ड वैल्यू किया जाता है। हाईएस्ट वैल्यू को, हाईएस्टली अकरिंग वैल्यू को सिलेक्ट किया जाए। तो ये मुख्तलिफ, इवन स्मूथिंग या ब्लरिंग में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं किसी एक फिल्टरिंग में। और फिर उसके बाद और एक्टिविटीज़ के भी फिल्टर हैं, जैसे एज डिटेक्शन के लिए बहुत सारे फिल्टर हैं जो हम आपने हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग और इन कोर्सेज में देखे हों या और जगह पढ़ा तो, कि लेप्लेशियन फॉर एज डिटेक्शन, सोबल फॉर एज डिटेक्शन, सोबल फिल्टर and share private. So there are different filtering activities like blurring, edge detection, and for each activity there are a various number of options. तो filters इसी तरह sharpening के लिए बहुत सारे filters, edge detection, तो there is a big bunch of filters which you apply for the image processing, or convolution neural network help you to choose the right at different layers of the filters. So you are more of a automatically learning these types of filters. ये आप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली लर्निंग, जो लर्निंग के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन एंड लर्निंग ऑफ दिस फिल्टर्स कर रहा है टिल द टाइम इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तक वो पहुंच जाए। अब जब हमने ये कर लिया तो अब हम डिटेल पे अब हर चीज़ को वन बाय वन हम देखते हैं। ये हमने इसको एक कन्वोल्यूशन को और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स को एज ए फुल कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब उनके एक एक पीस को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। तो कर्नल, वी वर ऑलरेडी यूजिंग दिस वर्ड, टाइनी मैट्रिक्स, यूजिंग दैट वर्ड हमने बता दिया। और उसको स्कैन करना है रीजन पर। और अब इसमें यह है कि अगर हमारा इमेज, इसका क्या होगा, देखिए ये इमेज हमारा है। अभी अगर ग्रे स्केल इमेज था, ग्रे स्केल इमेज था, तो उसके इसी स्केल पे हमारा ये फिल्टर इस तरह अप्लाई हो गया। ठीक, अब अगर ये कलर्ड इमेज है तो हमारे फिल्टर को, ये जो फिल्टर तो टू डायमेंशनल है, लेकिन अब डेप्थ में अगर ये कलर्ड इमेज है तो इसका मतलब है थर्ड डायमेंशन इज BRG, यानी यहाँ इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है इमेज की, और जो डेप्थ में है वो RGB, यानी ये एक किस्म के वेक्टर्स डेप्थ में जा रहे हैं हमारे, जो इस पोजीशन में R, G और B तीन की डेप्थ है। अब ये फ्लैट फिल्टर इमेज की तमाम लेयर्स पे अप्लाई होगा, यानी ये फिल्टर इधर अप्लाई होगा, फिर इसके पीछे यही फिल्टर उसके पिछली लेयर पर इस्तेमाल होगा, फिर यही फिल्टर उसके पिछले लेयर पर इस्तेमाल होगा। ये तो हो गया अगर ओके, तो ये तो डेप्थ आ रही है इसमें बिकॉज ऑफ RGB, ये डेप्थ है RGB। ये फिल्टर अगर कलर्ड इमेज है तो तीनों R, G और B तीनों पर इसमें अप्लाई होना है, ये डेप्थ होगी। अच्छा, एक और डेप्थ आएगी आगे हम देखेंगे कि देर आर लार्ज नंबर फिल्टर्स, जैसे हमने देखा ऑब्जेक्ट एंड, तो वो भी सारे इन लाइन इधर डेप्थ में जाएंगे। यानी पहले एच फिल्टर अप्लाई हो रहा है, मे बी ऑब्जेक्ट फिल्टर्स हैं या फिल्टर्स के चॉइसेस हैं। तो देर आर से ये कर्नल्स जो हैं इनकी एक पूरी ये डेप्थ प्रोवाइड करेगा किसी भी इमेज को प्रोसेस करने के लिए। ठीक,
तो एक तो इमेज की अगर डेप्थ है तो इसलिए ये फिल्टर उन पे जाएगा, लेकिन एक दूसरी डेप्थ की रीजन ये है कि देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर्स। इनमें से कौन सा फिल्टर किस लेयर की कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट होगा, it will choose between them at the time of training. Yeah, it will decide and train at the time of training and then use it at the time of testing. तो डेप्थ में ये दो लोग कंट्रीब्यूट, दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब कर्नल की एक सिंपल मिसाल, जो किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ होगा, उसके साइज, लेट्स एक एग्जांपल कर्नल की, अगर आप 3x3 का कर्नल ले रहे हैं और आप एवरेजिंग और स्मूथिंग कर रहे हैं, एवरेज स्मूथिंग वाला कर रहे हैं, यानी उसके इसके ऑल, ये जो हमने स्मूथिंग के लिए केस किया था, स्मूथिंग करते थे उस इमेज के 4 नेबर्स या 2 नेबर्स या 8 नेबर्स, तो ये 8 नेबर वाली में हम क्या करते थे, हर वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके और इन सबको ऐड करते थे। ये सारी वैल्यूज को इमेज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, उन सबको ऐड करते थे और फिर उनको 9 से डिवाइड करते थे। ये हम स्मूथिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये एवरेजिंग वाला जो स्मूथिंग है, जिसमें हर वैल्यू को इक्वल वेटेज है, इसको एवरेजिंग वाला। अगर हम आप गॉसियन स्मूथिंग कहेंगे तो फिर यहाँ पर इक्वल वेट नहीं होगा, बल्कि रैंडमली सिलेक्टेड वेट्स इस्तेमाल होंगे। तो एक टिपिकल स्मूथिंग और ब्लरिंग बेस्ड ऑन एवरेजिंग विद इक्वल वेट्स टू ईच पिक्सल का ये फॉर्मेट होगा। ये उसको जब हम एवरेज, ये 9 का एवरेज कैलकुलेट करते थे तो इसको 9 से डिवाइड करते थे। तो ये पिक्सल या हम इस ये काम करें और फिर 9 से डिवाइड कर लें, या हम मल्टीप्लाई करते वक्त ये हटा दें और ये हर जगह कहें 1/9। ये जो डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे हो तो हम 1/9 से लें। वट एवर इज वे 9 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कर्नल। तो आप इस तरह, ये कर्नल आपका हो जाएगा 1/9 एट ईच फॉर ए 3x3 कर्नल और टू अचीव द एवरेज स्मूथिंग। तो ये हमारा इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं वो जो स्मूथिंग और एवरेजिंग का हम काम करते थे बाय सिलेक्टिंग, उसमें हम ढूंढते थे। तो आप इसको सिंपल ये कर्नल एक इस किस्म का इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल कर लें, तो हम इसको कहते हैं स्मूथिंग और ब्लरिंग के काम को। तो ये एक एग्जांपल है कर्नल की। उसके साइज ये 3x3 है, इट कैन बी 5x5, इट कैन बी 7x7, नॉर्मली ऑड। अमूमन हम जिस जगह ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वी यूज एंकर ऑफ दिस सेंटर। हमने, जैसे मैंने बताया, हमने इस कॉर्नर को भी एंकर इस्तेमाल किया, लेकिन नॉर्मल ये है कि इस फिल्टर के सेंटर को, और इसीलिए ये ऑड नंबर रखते हैं। ऑड नंबर रखने से आपका सेंटर डिफाइंड है। इसको उस पिक्सल पे रखते हैं जिस पर आपने कैलकुलेशन करनी है, और वहाँ उसके इर्द गिर्द फिल्टर होता है, उसकी ये आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, और जो आंसर आता है वो उसी जगह आउटपुट मैट्रिक्स पे लिख देते हैं। ये अब उसकी वो कैलकुलेशंस, इफ यू रिकॉल, हमने भी किसी टाइम में की थी। उसकी एग्जांपल है बाय नंबर्स एंड वैल्यूज एट एनी टाइम। अगर इसका एंकर फिल्टर का इस जगह है, सपोज ये एंकर अब ये है, यहाँ पे आपने एंकर किया हुआ है, क्योंकि फिल्टर यहाँ से चलेगा, हॉरिजेंटली ट्रेवल करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हॉरिजेंटली ट्रेवल करेगा, फिर, और ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे और इसके आंसर इन्हीं लोकेशंस पे लिखते जाएंगे जहाँ इसका सेंटर रखा हुआ है। तो ये अभी इस जगह एंकर्ड है। तो कैलकुलेशन की एग्जांपल क्या होगी, इस फिल्टर के, ये कोई एज डिटेक्शन या इस तरह का कोई फिल्टर है, इट्स नॉट दैट एवरेजिंग फिल्टर। तो इसमें हम देख रहे हैं ये वैल्यूज हैं। इट कैन हैव, वो आपके डिजाइन, यू पीपल हैव डिजाइन दिस फिल्टर्स, यू कैन यूज दोज, एंड यू कैन इवन ट्रेन इन दिस केस फॉर देयर वेट्स। अच्छा, तो अगर ये इस तरह रखा हुआ है तो कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट इज द कन्वोल्यूशन वैल्यू एट दिस पॉइंट, आप -1 मल्टीप्लाइड बाय जो ये वैल्यू है 93, 0 multiplied by 129, +1 multiplied by this, -2 multiplied by this, 0 multiplied by this 212, +2 multiplied by,
इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, उन सबको ऐड करते जाएंगे और एक आंसर आएगा वो इस जगह आंसर की जगह पर लिख देंगे इसी लोकेशन में। ये कैलकुलेशन की एग्जाम्पल फॉर ए इमेज एंड ए पिक्सल। ओके, ये एक और अच्छा, अब इसकी ट्रेवलिंग, अब इसको मूव करना है। एक तो ये था कि फिल्टर अब आपका उस लोकेशन पर है, लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट 1 by 1। ये लेफ्ट में center pixel of a 3 by 3 kernel is located at coordinate 1 by 1, 0 से 1 इधर और 0 से 1 इधर। तो ये अगर ऑड नंबर आप रखते हैं तो इस तरह आप सेंटर में एक एंकर फिल्टर का बना सकते हैं। और ऑफ ए कर्नल ऑफ साइज, अगर आपका कर्नल 2 by 2 होगा और फिर आप इसको सेंटर फोकल ढूंढेंगे तो वो कोई 1.5 पे आ रहा है, ठीक। तो वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑल्दो इट कैन बी यूज, अलाउड है, ठीक है, मगर वो फिर आप सेंटर उसका इस तरह इस जगह डिफाइन नहीं कर सकते जिससे वो सिमेट्रिकल हो दोनों तरफ, ठीक। तो फिर आपको किसी या एज एंकर इस्तेमाल करें या किसी और पोजीशन को डिफाइन करें तो कर सकते हैं, अलाउड है, मगर इट सूट्स के अगर आप इसका साइज ऑड नंबर और स्क्वायर रखें। ओके, अब इसी की बात को हम एक एग्जाम्पल में, ये जो मैंने सारी बात की उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा k है और ये हमारा i है, ठीक है, और हम k कन्वोल्यूशन i, ये स्टार कन्वोल्यूशन को शो कर रहा है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो अब हमें अब दोनों का पहले हम खाली देखें कि एवरेजिंग के लिए अगर आपका सिलेक्टेड जोन ये था, इमेज का ये हिस्सा आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है और आपका फिल्टर ये है जो कि मैंने कहा था ये 1 by 9 कैन बी 1 by 9 ऑन ईच, तो आप इन दो को सिर्फ ये एक सिलेक्टेड पैच ऑफ योर इमेज है जिसकी वैल्यूज हैं ये उसको, तो ये आप उसी तरह जैसे हम करते हैं कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया तो वही 93 26 और ये 1 by 9 से सारे मल्टीप्लाई हो गए, ये चीज़ हो गई। फिर इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके सम किया, ये सम है, तो आपका एक आंसर स्केलर आंसर 132 आ गया। और फिर आपने जहां इस फिल्टर को ये सेंटर रखा हुआ है इस इमेज के इस पोजीशन पे एंकर किया था, आउटपुट में इमेज की इस पोजीशन पर आप 252 वो सॉरी ये 132 लिख देंगे, जहां आपने इस जगह रखा इस फिल्टर को, इसके ऊपर ये कैलकुलेशन की, आंसर 132 आया। आउटपुट मैट्रिक्स में जहां भी कहीं आपने फिल्टर रखा हुआ था, ये जहां 252 था अब उसकी जगह ये आ जाएगा 132। ये कैलकुलेशन के साथ उसके एग्जाम्पल। ओके, तो अब हमने कहा कि पहले तो हम पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम केरास में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हमारी कोडिंग पार्ट इसका आ गया कि हाउ टू कोड है। तो पहला वही नेसेसरी पैकेजेस हम हमेशा लेते हैं, इसमें स्काई एस के इमेज, ठीक, एक एस के लर्न था, इसी तरह एक एस के इमेज है, ये भी एक लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है पाइथन के साथ। तो एस के इमेज डॉट एक्सपोजर से आपने इंपोर्ट किया रीस्केल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को रीस्केल करने के लिए ये एक क्लास या मॉड्यूल है जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारे नमपाई का एनपी और ये जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं उसके आर्ग पार्स पहले भी हमने किया है, और ये CV2 ओपन सीवी के लिए, तो ये पैकेजेस हमने इसमें, जब हम पाइथन से कन्वोल्यूशनल नेटवर्क या कन्वोल्यूशन कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है।
इसमें हम यहाँ अब कन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कन्वॉल्व करने के लिए ये हमारा मेथड है जो हम लिख रहे हैं इस क्लास के अंदर, कन्वॉल्व। ये असली वो एक्टिविटी है जो कन्वॉल्व की है। ये हमारा इमेज है जिसको हम कन्वॉल्व करें। के हमारा कर्नल या फिल्टर है जिसके साथ कर रहे हैं। ये दो इसके पैरामीटर हैं। हमने पहले अब इस कोड को करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि वी विल रीड इन ट्यूपल्स व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच इमेज। ये इमेज आपने यहाँ पूरा इमेज दिया हुआ है, इसकी इनपुट इज इमेज। ये के कर्नल। आपने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम इन दोनों की, मेरा प्रोग्राम इनके डायमेंशंस को फाइंड करे या रजिस्टर करे या नोट करे, एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि इस डायमेंशन के बेस पे हमने आगे सारे काम करने हैं। तो ये दो लाइनें डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैं। क्या है? इमेज की डॉट शेप। इमेज की जो भी कोई शेप है, ये रीशेप आप नहीं कर रहे, ये अभी एग्जिस्टिंग शेप को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इमेज डॉट शेप, और उसके आगे आपने ये अरे दिया। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज 0। ये उसका एंड पॉइंट है नॉट इंक्लूडेड टू। तो ये 0 से 1 तक 0 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, इस स्टेटमेंट का मतलब वो मांग रहे हैं और वो इधर डाल रहे हैं। इसकी 0 डायमेंशन आई एच में आ जाएगी, इसकी 1 डायमेंशन आई डब्ल्यू में आ जाएगी। तो अगर आपका ये इमेज है, ये इमेज है, तो इस इमेज की 0th डायमेंशन ये कहलाती है। और ये हमारा ये इमेज आई है, इसमें उसने इमेज इमेज के लिए इसकी ये 0th डायमेंशन को आपने आई एच में डाल दिया, आई एच, और आपने ये डायमेंशन 0 कहलाती है। और ये डायमेंशन 1, इसको आपने ये आपने आई डब्ल्यू में डाल दिया, विड्थ। असल में ये विड्थ और हाइट के लिए आपने इमेज की विड्थ और हाइट के लिए आई एच और आई डब्ल्यू का वेरिएबल इस्तेमाल किया। और ये स्टेटमेंट के जरिए से जो आपको इमेज फीड किया गया था उसकी डायमेंशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी। इसी तरह के शेप, यहाँ 0 से 1 तक, यानी डायमेंशन 0 और डायमेंशन 1 में के की क्या साइज है, तो वो आपने के हाइट और के विड्थ, के एच के डब्ल्यू में वो दो नोट कर लिए। ये के यहाँ जो इसके ऊपर यहाँ है जो रखेंगे आप, ये आपका के है। और उसका ये के एच इधर है, 0th डायमेंशन के एच और फर्स्ट डायमेंशन के डब्ल्यू। ये दोनों आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए बाय योर प्रोग्राम। ओके, अच्छा। अब आपने मेमोरी फॉर आउटपुट इमेज, और इस बात का आपने ख्याल रखना है पैड करने का, जो हमने पहले सीखा है कि बॉर्डर्स इनपुट इमेज के जो हैं वो हम पैड करते हैं। और उनका मकसद क्या होता था पैडिंग का, कि जब ये कर्नल एजिस पे जाता है तो इट गेट्स आउट ऑफ द इनपुट रेंज, और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के लिए कोई वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हम अगर पैड्स वहाँ डाल दें ऑफ सम वैल्यू, जो दोनों तरह का हो सकता है, या एक्सटेंडिंग दी एजेस की वैल्यू को कर दें या ज़ीरो डाल दें, तो वो बॉर्डर पर इस तरह हमारा इनपुट इमेज एक्सटेंड हो जाएगा। और उसका स्पेशल साइज जो है अब हमें पैडिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट इमेज का साइज वही रहे जो इनपुट का था, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इधर इनपुट पे पैड्स डाल देते हैं, यहाँ 0 या किसी चीज़ के, और फिर कैलकुलेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं इनपुट इमेज की। और हमारा ये पहला इधर आता है, यहाँ लास्ट वाला जो है वो इधर आएगा, और इसी तरह इधर एंड पर ये होगा और इधर ये होगा। इस तरह योर
कर्नल इज नेवर गेटिंग आउट ऑफ द रेंज, और कैलकुलेशन आप सेंटर, कर्नल को सेंटर रख रहे हैं, हमने जैसे पहले कहा था वो कर रहे हैं, तो आपकी आउटपुट मैट्रिक्स का साइज वो होगा जो ओरिजिनल इमेज की मैट्रिक्स का साइज, अगर आप पैड ऐड करते हैं। अगर आप पैड ऐड ना करें तो इसका साइज वही होगा, ये चीज इसके बराबर। उसमें इनपुट का फिर पैड की वजह से साइज आप कह सकते हैं बड़ा है, लेकिन आउटपुट का साइज वही रहा। समटाइम्स लेटर हम देखेंगे कि अगर आप पैड नहीं डालते तो फिर आपकी कैलकुलेशन महदूद हो जाती है। मसलन क्या हो जाती है कि अब आपने, क्योंकि इधर बाहर नहीं निकल सकते थे और यहाँ आपने सेंटर रखना था, तो आप इधर से शुरू करते हैं कैलकुलेशन और यहाँ तक आप आते हैं, तो आपका साइज आउटपुट का उसके हिसाब से कम हो जाएगा इतना, जो यानी पैडिंग की वजह से इनपुट बढ़ रही थी, वो अगर वो रहे तो आपके आउटपुट का फिर साइज ये हो जाएगा। ठीक, ये है पैडिंग का पार्ट। तो हम पैडिंग इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा साइज रिड्यूस ना हो। ठीक है, तो पहले तो पैड का साइज हमने तय करना होता है कि पैड का साइज क्या हो। तो हमारा जो भी एक तो हम कहते हैं हमेशा हमारा ये शेप विड्थ और हाइट हमारे कर्नल की बराबर होती है, स्क्वायर होता है, लेकिन अगर ना हो तो एनीवे फिर भी हमने यहाँ कोई भी डायमेंशन को लिखना है तो हमने कहा ओके विड्थ। तो जो भी कर्नल का साइज है उसमें एक माइनस करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमें पैड का साइज, पैड का साइज क्या है, हाफ ऑफ द कर्नल। कि अगर आपका कर्नल का साइज लेट से ये था 5/5, 5/5, ठीक है, इसका मतलब है अब आपके इसके 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5, ये आपका इसका सेंटर है। तो सेंटर से हटके आपकी दो रोज या दो कॉलम्स इसके लेफ्ट पे हैं और दो राइट पे हैं। अगर हॉरिजेंटली देखें, वर्टिकली देखें तो दो इस लाइन से ऊपर हैं और दोनों। तो सेंटर पॉइंट के लिए 5 में से हमने इस माइनस ये वाली लाइन कर दी, 5 माइनस 1 4 हो गए, उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। और वही हमारा है कि उस सेंटर पॉइंट से ये 2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 राइट है, 2 लेफ्ट है। तो इसने जब एंड पे जाना है तो 2 बाहर निकलना है। इस अगर 5/5 था तो पैड का वो साइज रखते हैं हम। तो ये पैड का जनरल साइज कि जो भी कर्नल की विड्थ है -1 डिवाइड बाई 2। अब हमने इमेज के साइज को उतना पैडिंग उस पर ऐड करनी है, उसको बढ़ाना है ताकि हमारे आउटपुट का साइज वही रहे जो एक्चुअल इमेज का साइज था, वो रिड्यूस ना हो। तो ये हमने, अब हमने ओपन सीवी का जो CV2 है उसको इस्तेमाल किया और हमने ये जो ओरिजिनल हमारा इमेज था उसके साइज को बढ़ाया। CV2 डॉट, ये उसके अंदर है कॉपी मेक बॉर्डर का, उसमें ये मेथड है जिसमें आपने वो इमेज जिसमें बॉर्डर डालना है और उसके जो हर सिम्थ में कितना बॉर्डर डालना है, हम चारों तरफ पैड ऐड कर रहे हैं। पैड विड्थ 1 2 3 4, ये चारों तरफ आपने उसके पैड ऐड कर दिया। और फिर ये इसी में कह देते हैं आप नेक्स्ट में कि ये CV2 का बॉर्डर रेप्लिकेट को इस्तेमाल करके ये शेप उसकी बना ली जाए। ये CV2 में फैसिलिटी है हमारे पास। अब आपका ये इमेज जो इनपुट पे आया था वो एनहांस होके विद बॉर्डर्ड इमेज बन गया। नाउ इट्स अ बॉर्डर्ड इमेज, इनपुट इमेज इज अ बॉर्डर्ड इमेज। और इसमें आपका अब जो आउटपुट का साइज होगा वो रिटेन रहेगा जो ओरिजिनल इनपुट इमेज का साइज था, वो ये था IH और IW। तो यहां पर अब आप आउटपुट का जो मैट्रिक्स है वो आप IH IW साइज का बना सकते हो। और उसको इनिशियलाइज करने के लिए आसान तरीके हैं। NP में एक तरीका ये है कि जी आपने NP डॉट जीरोस का एक मैट्रिक्स बनाया जिसकी डायमेंशन IH और IW हैं, इन डायमेंशन का है और उन पर जीरो फिल हो गए इनिशियली। और ये जो जीरो फिल हुए हैं, टाइप ऑफ डाटा आपने फ्लोट रखा क्योंकि ये 1/9 और कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट्स फ्लोट वहाँ पर आएंगे कैलकुलेशन के बाद। तो हमने शुरू से ही
अगरचे ज़ीरो फिल किया है मगर हमने ये रखा है कि दिस ज़ीरोज़ आर 0.0000, ताकि जब कैलकुलेशंस हों तो ये मैट्रिक्स उसको हैंडल, ये आउटपुट मैट्रिक्स आपने बताया। तो देखिए कन्वॉल्व का फंक्शन, इनपुट मैट्रिक्स, इनपुट कर्नल, उनके डायमेंशंस लेना, पैड ऐड करना ऑन द इनपुट मैट्रिक्स, और फिर आउटपुट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज टू ज़ीरो करना और डिफाइन करना। अच्छा, तो अब हमने पैड वगैरह ऐड कर लिया और अब हम वो काम कर सकते हैं, वी कैन ऐड दैट कोड कि भाई इसको इस एंड से इस एंड तक स्लाइड करके लेके जाओ, और स्लाइड में स्टेप्स कितने लेने हैं, कितने यानी हर स्टेप पे कितना मूव करना है और क्या कैलकुलेशन करनी है, ये सारा। तो अब आप देख सकते हो, अब क्योंकि पैड इस पैड हो गया है तो ये 3x3 था तो पैड साइज 1 होगा, तो हर तरफ यहाँ अब आपको इधर ज़ीरोज़ आपने ऐड करने हैं, और अब यहाँ पर इस पॉइंट पर रखकर आप इसको कैलकुलेशन को कर सकते हो, और यहाँ भी इस एंड पे भी इधर बाहर जाओगे, और अब आपके लिए पॉसिबल हो गया विदाउट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स। तो अब इस काम को करने के लिए हियर इज दैट कि आपने अब इस काम को करना है, जो ये हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड समिंग करनी है, उसके लिए हमारे ये दो लूप हैं। ये y को रेंज हमने दी, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग एड्रेस y के लिए पैड, और एंड रिजल्ट आई एच प्लस पैड। आपका असल में ये देखिए, ये इमेज था, इस पे आपने ये पैडिंग ऐड की। अब आपका इमेज में पैड एडिड है असल में। अब इस वक्त जो आपके पास है इमेज, उसमें पैड हो चुका है, आपने एक्टिविटी पैडिंग ऐड कर दी। अब आपने इस पर जब ये काम करना है तो सबसे पहले जब आप इधर रखोगे तो ये इस तरह रखा जाएगा, जैसे हमने अभी पीछे दिखाया, इस तरह रखा जाएगा। तो अब हम का हमारा y में, ये हमारा y है, ये हमारा x है, x एक्सिस और y। तो y में हम वैल्यूज को शुरू करेंगे, पहली वैल्यू, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये एंकर का सेंटर रखा है, तो हम क्या वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, y में ये पैड है यहाँ पे, तो पैड की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हमारा y का। और ये हाइट आई एच, ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है। तो अगर हमने यहाँ पैड से स्टार्ट किया तो उसमें आई एच हम ऐड करें, आई एच, तो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट y के लिए पैड है और एंड पॉइंट हमारा y के लिए ये है पैड प्लस आई एच। तो ये उसके दोनों हमने दी, पैड से स्टार्ट होगा y का जो एक्सिस है रेंज, और आई एच प्लस पैड पे खत्म होगी, ये y एक्सिस का हो गया। इसी तरह x एक्सिस का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर विच इज x में ये इतना आगे आ गया पैड जितने पे आया, और इस पैड में फिर आई डब्ल्यू ऐड होगा, और आखिरी कैलकुलेशन आप इस जगह करोगे, आई पैड से लेकर आई डब्ल्यू प्लस पैड तक ये लूप आपका चलेगा। तो ये y और x दोनों इसके इमेज पर ये काम करेंगे, और उस काम के लिए पहले इस इमेज में आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट इस इमेज में एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने। वो क्या है, ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और वो क्या है, इमेज में से y माइनस पैड, जिस जगह भी आप किसी भी एक पॉइंट पर हैं, आप यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग इट एट एनी पॉइंट। अब आप कर रहे हैं, आप एक्स वाई पॉइंट पर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट जिस पर आपने ये रखा हुआ है उस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एक्स वाई है आपका, यहाँ दिस पॉइंट इज एक्स वाई, जिसके ऊपर इस वक्त ये कैलकुलेशन हो रही है।
आपके ये रेंज थे कि आपका एंकर कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा, इसमें ये ट्रेवल कर रहा है। अब ये किसी एक एक्स वाई पे इस वक्त मौजूद है, ये एक्स और वाई किसी एक एक्स वाई पे मौजूद है और आप अब वो काम करना चाहते हो। तो आपने पहले रीजन ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया कि एक्स वाई से वाई में भी माइनस पैड ऊपर गए तो आप ये वाई में इस जगह आ गए, यानी इस लाइन पर आ गए, और एक्स में भी आप माइनस पैड पीछे गए तो यहाँ आ गए। तो आपका ये पॉइंट जहाँ से आपका ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है वो वाई माइनस पैड और इधर एक्स माइनस पैड पे ये पॉइंट है आपका ये। और हर एक ने वाई माइनस पैड में फिर ये इस इस पोजीशन से आगे ये वाई था तो वाई प्लस पैड तक जाएगा। ठीक, तो ये चीज के एक्सिस वाई माइनस पैड और एक्स माइनस पैड है, ये पॉइंट वाई माइनस पैड एंड एक्स माइनस पैड कौन सा पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग। और आपका जो एंड है आपका इसका, ये एंड वाले हैं y प्लस पैड, कि आपके y वाले साइड पे y प्लस पैड इस लाइन पे आ गए और x फ्लैट पैड से इस पॉइंट पे आ गए यहाँ तक। तो आप इस पूरा ये एरिया ऑफ रीजन आपका ये हो गया रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने यहाँ डिफाइन किया इमेज में से। इफ यू आर इन दिस लूप एट पॉइंट एक्स वाई, तो आप इमेज का जो हिस्सा इस्तेमाल करेंगे वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया रीजन ऑफ इंटरेस्ट में। जब आपके पास वो है, अब आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड सम कर सकते हैं। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट को के जो कि आपका कर्नल है उसके मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई किया और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई को डॉट सम करके ऐड किया, ये मेथड सम आपने कॉल किया। तो ये आपकी कन्वोल्यूशन की कैलकुलेशन हो गई एट ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंटरेस्ट एक्स विच इज प्लेस्ड एट एक्स वाई पोजीशन। इस रिजल्ट को आपने लेट से इस वेरिएबल के में डाला। अब इस वैल्यू के को आउटपुट में हमने देखा था कि आउटपुट का हमारा मैट्रिक्स वही है जो पुराना था और हम उसमें उसी जगह ओरिजिनल जगहों पे वैल्यूज डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे एक्स वाई इस हिसाब से ये पैडिंग के हिसाब से इनपुट इमेज में आपने इस्तेमाल किए हुए हैं और आउटपुट में आपने साइज वही रखा हुआ है जो पहले था। तो आपकी जो भी पोजीशन थी एक्स और वाई की उसमें आपने माइनस पैड कर दिया, यानी क्योंकि अभी एक्स वाई की वैल्यू इस साइज के हिसाब से इनपुट इमेज के और आउटपुट इमेज इससे में उसमें पैड नहीं है, तो उसमें सही जगह पे आंसर डालने के लिए आपने y माइनस पैड और x माइनस पैड का पोजीशन को पॉइंट किया और इस k को जो कैलकुलेट हुए थे वहां डाल दिया। अब ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ कन्वोल्यूशन हमने डिटेल से यहाँ देखा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हम रीस्केल करना चाहते हैं आउटपुट इमेज को। अगर हमारा लेट से इस केस में अगर ये ग्रे स्केल इमेज था और इसकी वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0 to 255 थी, तो हम इन वैल्यूज को रीस्केल फ्लोटिंग पॉइंट में करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो यूज किया था, वो जो हमने एक कॉल किया था, जो हमने लाइब्रेरी में एक क्लास या मॉड्यूल जो कॉल किया था रीस्केल इंटेंसिटी, वो अब हम यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे कि आउटपुट में जो वैल्यूज हैं, असल में जो आउटपुट पे वैल्यूज आ रही हैं जब आप ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं करोगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और ऐड करोगे, तो अगर आपके ओरिजिनल इमेज की वैल्यूज 0 से 255 थी ग्रे स्केल में या किसी एक कलर के एक उसमें, तो ये मल्टीप्लाई ऐड से हमने पहले भी किया था ये काम कि ये उस रेंज से बाहर निकल जाएंगे।
दे में बिकम मच लार्जर। जब आप ये मल्टीप्लाई ऐड करोगे किसी एक पोजीशन पे, तो वैल्यू विल बिकम मच लार्जर। तो हमने उस वक्त मैनुअली किया था जब हम क्यूडा सी से काम कर रहे थे कि इफ द वैल्यू गोज टू द बिलो जीरो, तो हम उसको जीरो पे होल्ड कर देते थे। इफ द वैल्यू गोज अबव 255, तो हम उसको 255 पे होल्ड कर देते थे। हम जो लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पर उनको होल्ड करते थे ताकि रैप अराउंड ना हो जाए। हम ये मैनुअली कोड लिख के करते थे। यहाँ हमारे उसकी जगह ये वो है हमारे पास मेथड कि जब आप ये आउटपुट पे जो वैल्यू आए उसको आपने कहा इन रेंज 0 to 255 आप रीस्केल कर दें। तो आउटपुट की वैल्यूज को इस रेंज में रीस्केल किया इस मेथड से, और आउटपुट के सारे इस रेंज में हो जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर आपने, अच्छा, अब आपने जब इन चीज़ों को, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आपकी वैल्यूज आएंगी। अभी तक कैलकुलेशन आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में थी, और फ्लोटिंग पॉइंट की कैलकुलेशन को आपने रीस्केल किया था। अब आप उसको दोबारा नंबर इन इन द रेंज ऑफ 0 to 25 करना चाहते हैं, तो आप अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को 255 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका इसका जो टाइप है एस टाइप यूनिट 8 अनसाइंड इंटीजर ऑफ 8 बिट, क्योंकि आपका 8 बिट डाटा है फॉर 255। तो आपने यहाँ जो फ्लोटिंग पॉइंट लेवल पर इसको स्केल किया था, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन थी उसी में आपने स्केल कर लिया। तो अब जब आंसर आ गया तो अब आपने इसको 255 से मल्टीप्लाई करके और अनसाइन इंटीजर 8 के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको दोबारा 0 से 255 के रिजल्ट्स मिल गए, और फिर अब जो आपका आउटपुट इमेज है ये रिटर्न किया वैल्यू को। अच्छा, अब हम इसमें ये जैसा ये तो हम इससे फैमिलियर हैं कि आपने ये मैथ ये इस्तेमाल करने हैं। तो आपने इसके अंदर ये आर्गूमेंट्स के लिए ये एक माइनस आई एंड फॉर इमेज, और ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, और ये है पास टू द इनपुट इमेज। ये आपके जब आप कॉल करोगे इस मेथड को, तो उसके कॉल में जो पैरामीटर्स आप दे सकते हो उसको आपने यहाँ आर्गूमेंट के तौर पे डिफाइन किया हुआ है, और जब आप इसको वहाँ लिखोगे तो ये आपका आर्गूमेंट पार्सर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। अब ये इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर आप ब्लरिंग कर रहे हैं या स्मूथिंग कर रहे हैं, हमने अभी एक मिसाल देखी 3x3 के उससे की, तो फिर इसकी ये थोड़ी और मिसालें हैं कि अगर आप लेट से 3x3 7x7 के ये वंस, अगर आप स्मॉल ब्लर रिंग करना चाहते हैं तो आप वंस का कर्नल बनाएंगे जो 7x7 साइज तक हो, और डेटा टाइप फ्लोट हम कहते हैं। उसमें हम ये जो हमने देखा था कि अभी 3x3 था, जब ये वन ये हम कह रहे हैं 3x3 में ये 1 था, और इस पूरे को हमने बाहर 1/9 से मल्टीप्लाई किया था। तो जितने इसके एलिमेंट की तादाद होती है उससे ये डिवाइड करते हैं हम इसको, जब हम एवरेजिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 7x7 का होगा और ऑल वंस होंगे, तो इसको 1/7 × 7 जो भी उसकी डायमेंशन है उस उतने ही एलिमेंट्स होंगे और उससे हम डिवाइड। इसी तरह दूसरा, अगर आप लार्ज ब्लरिंग करते हो तो 21/21 का कर्नल इस्तेमाल कर रहे हैं वंस के साथ, और फ्लोटिंग वैल्यू है, और उसको डिवाइड आप 21 × 21 1/21। ये हमारे कर्नल को जनरली डिफाइन करने का तरीका। अच्छा, अब हमें ये देखने हैं कि ये जो हम कह रहे थे अभी तक, हमने ये वाला फिल्टर अप्लाई किया है स्मूथिंग, लेट से 3x3 की, तो ये फिल्टर है विच डज द जॉब स्मूथिंग ऑफ इमेज। मगर मैंने आपको बताया था देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी डू विद द इमेज, पीपल हैव डिजाइन दोज, डिफाइंड देम एंड गिवन इट टू अस। हम इससे आगे जब हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क करते हैं तो हम पूरा बंच ऑफ दीज फिल्टर्स उसको देते हैं,
और वो अपने डिफरेंट स्टेज और सूटेबिलिटी के लिहाज से उनको सिलेक्ट करता है। कस्टमाइज भी कर सकता है, मगर एक मेजर काम है कि उस बंच में से राइट फिल्टर एट द राइट प्लेस, उसका सिलेक्शन। तो अब ये चॉइसेस ऑफ फिल्टर्स हैं जो आप उस बंच में डाल सकते हो। जैसे ये है कि अगर आपने शार्पन करना है, शार्प किसी इमेज को शार्पन करना है, तो आप ये फिल्टर 3x3 का आप इस्तेमाल करोगे। ये देखिए शार्पन के लिए आप फिल्टर डिफाइन कर सकते हो, इस तरह np.array। np में जो अरे को डिफाइन करने की सलाहियत है, तो उसके अंदर अरे ऑफ अरेज आपने डिफाइन किए हुए, ये फर्स्ट लाइन कॉमा, सेकेंड लाइन कॉमा, थर्ड लाइन। तो ये अरेज हैं, अरेज ऑफ अरेज के तौर पर शार्पन फिल्टर एनपी को यूज करके बाय यूजिंग द मेथड अरे आप ये कर सकते हो। और इसमें आपके पास चॉइस था, जब हमने ये सीखी थी, कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, वरना ये डिफॉल्ट लेगा। तो इसमें डेटा टाइप भी आप बता सकते हो कि ये जो चीज़ है इसके एलिमेंट्स की डेटा टाइप क्या है, वो आपने कहा इंटीजर, ये हो गया। इसी तरह लेप्लेशियन का कर्नल है जो एजेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ये वैल्यूज हैं, ये भी 3x3 के तौर पे कहा है, लेप्लेशियन np.array, अरेज ऑफ अरेज, ये भी इंटीजर। ओके, इसी तरह वेरी वेल नोन सोबल कर्नल, ये इमेज प्रोसेसिंग में यू मस्ट हैव कम अक्रॉस। तो तो ये डिटेक्ट करता है एज लाइक रीजन्स को, मगर इसमें सलाहियत है कि एक्स और वाई या एजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डिटेक्ट करे या एजेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई करे। तो एक्स और वाई के लिए रिस्पेक्टिवली आपके पास सोबेल कर्नल्स डिफाइन है, ठीक है। तो अगर एक्स के लिए आपने करना है, लेट्स ये नाम दिया आपने सोबल एक्स, और ये एनपी के जरिए से ये एक्स की डायरेक्शन में डिटेक्ट करने के लिए, और ये इंटीजर टाइप। इसी तरह वाई के लिए सोबल वाई, ये वाई की डायरेक्शन में करने के लिए डिटेक्ट करेगा। आप ये देख सकते हो कि ये वर्टिकल कॉलम में वैल्यूज हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम में वैल्यूज हैं, ये डिफरेंस है, और ये इंटीजर टाइप। फिर इसी तरह अगर किसी चीज़ को एम्बॉस, वो जो आप आगे को निकल के उसकी शेप आ जाए, वो करना चाहते हो, तो फिर ये आपका ये है एम्बॉस का अरे। इसमें ये चीज़ों को यानी पिक्सल्स को इस तरह का इम्पैक्ट दिया जाएगा कन्वॉल्व करते वक्त, तो वो चीज़ उभर के आगे को हो जाएगी। तो ये कुछ फिल्टर्स के एग्जांपल्स हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, अभी भी इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे। और इनका इम्पैक्ट देखने के लिए भी हमने वी हैव सम पिक्चर्स टू शो दैट। पहली बात तो ये है कि हम वी कैन लम्प देम टुगेदर इनटू सेट ऑफ ट्यूपल्स, जिनको हम कर्नल बैंक कहते हैं। तो हम इनको एक कर्नल बैंक में प्लेस कर देते हैं, और फिर ये डिफरेंट जब हम कन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि डेप्थ में आपके पास फिल्टर की एक पूरी रो या एक डेप्थ में एक पूरा डीप ऑप्शन है कि क्या चीज़ें वहाँ डालनी है, तो वहाँ आप ये कर्नल बैंक को डाल देते हो डेप्थ में। और ये सारे फिल्टर जो अभी हमने देखे, आप इनको एक जगह कर्नल बैंक में रख देते हो एज ए एज ए एज ए ट्यूपल्स, ठीक है। क्योंकि दो पैरामीटर्स चाहिए हर हर फिल्टर को या कर्नल को, एक उसका ये नाम कि स्मॉल ब्लर है, और ये एक उसका वो जो कर्नल का मैट्रिक्स है ये। इसी तरह लार्ज ब्लर और उसका मैट्रिक्स, शार्पन के लिए। अच्छा, ओके। तो ये हमने डिफरेंट फिल्टर्स, उनके नाम इस बैंक में, और उन फिल्टर्स को हमने इसमें डाल दिया। अब हम इन फिल्टर्स को
यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि लिस्ट ऑफ कर्नल्स हमने बना ली और इसके ज़रिए से वी विल लूप ओवर देम एंड विजुलाइज देयर आउटपुट इन एन एफिशिएंट मैनर इन कर्नल्स को इस्तेमाल करके। ठीक, अच्छा। तो ये अब हमारे ये इमेज में आपने रीड किए, इमेज को रीड किया, फिर ये ग्रे करके इसको आपने ग्रे स्केल इमेज बनाया, और ये हमारे जो कर्नल्स की लिस्ट है फॉर कर्नल नेम एंड कर्नल का मैट्रिक्स, ये इस कर्नल बैंक से इनको आप वन बाय वन यहाँ से लेते गए और इनको आपने कन्वॉल्व करने में जो आपका ग्रे की शक्ल में इमेज है उसको उस सिलेक्टेड कर्नल से कन्वॉल्व किया, तो आपको कन्वॉल्व आउटपुट मिल गई। और फिर इसी तरह आपने ओपन सीवी आउटपुट में सीवी डॉट फिल्टर को ये आउटपुट ओपन सीवी फॉर्म में आउटपुट ली और आपने कैलकुलेशन से अपनी कन्वॉल्व आउटपुट ली, और इन दोनों को आपने कंपेयर करके देखा कि आपका रिजल्ट सही है, और फिर आपने इनको यहाँ ये शो CV2 के उससे इसको शो कर लिया आउटपुट पर, इसके रिजल्ट को। फॉर्मेट ये है, और आपने दोनों को कि कर्नल का नेम क्या है और कन्वोल्यूशन से आउटपुट क्या मिली, कर्नल का नेम क्या है और ओपन सीवी से आउटपुट क्या मिली, इन दोनों को आपने इमेज की शक्ल में देखा और कंपेयर किया और देखा कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं। और ये उसकी एग्जांपल्स हैं हमारी कि ये ओरिजिनल इमेज है यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओरिजिनल इमेज, ये उसको जब हमने कन्वॉल्व किया तो ये इमेज है, और CV2 फिल्टर से जो 2 डायमेंशनल CV2 ने जब वो अप्लाई किया ये, तो अब हम देख सकते हैं कि हमने हमारे कोड से जो कन्वॉल्व करके आंसर आया है वो और CV2 का आंसर वो मैच करते हैं। इससे हमें पता चल गया कि आवर वर्क हैज़ हैपेंड करेक्टली, वी हैव डन दिस जॉब करेक्टली। इसी तरह जो हमने बताया था कि डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, सोबल एक्स अप्लाई करें तो इमेज पे ये असर पड़ता है, सोबल वाई करेंगे तो ये असर पड़ेगा, एम्बॉस करेंगे तो इमेज इस शक्ल में हो जाएगा, उभर के आ जाएगा। ये हमारे ये है, सोबल एक्स से ये हुआ, सोबल वाई से ये, और एम्बॉस से ये हो गया। ठीक, और ये वो थे जो ओरिजिनल कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ इस्तेमाल जो करते हैं, ब्लरिंग, ये ज़्यादा ब्लरिंग इस्तेमाल की है, कम, और ये सोबल के इफेक्ट। तो ये तमाम जो हमारे डिफरेंट, अभी हमने फिल्टर्स की एग्जांपल देखी, आपने उस डॉग के इमेज पे उन सारे केसेस को यहाँ पर उनका इम्पैक्ट देख सकते हैं जब आप उसको करेंगे। ओके, so that's all for today, and any all right, we are finished with our lecture, and we'll continue from here next time. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? बस ठीक ठाक। फवाद, आप कैसे हैं? जी फवाद, अल्लाह का शुक्र सर। जी सर, क्वेश्चन है? सर मेरा जी सर क्वेश्चन सर मेरा ये कि हमारा ऑलमोस्ट ये सेमेस्टर एंड होने को ही ऑलमोस्ट आ गया है। जी जी। हमारा जो है सर FYP कब स्टार्ट होगा प्रॉपर? क्योंकि इस पे तो अच्छा खासा टाइम लगता है और थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी होता है, हाँ और अगले सेमेस्टर में हमारी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जी जी। अच्छा तो आपने आप किया कि हमने अपनी लास्ट मीटिंग में ये किया था कि हम, ठीक है कि जी ये, आपने हाँ हफ्ते पहले कहा था कि हम विद इन अ वीक जो है ये स्टार्ट कर लेंगे, हाँ हाँ, बट 2 वीक हो गए हैं पर अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आई। यस, ओके, गुड दैट यू रिमाइंडेड। और ये इसको अभी यहाँ पे हसीब मौजूद नहीं है, मैंने हसीब और अपने कोऑर्डिनेटर जो सर हैं मैं मती को ये कहा था कि हर एक से ये चॉइस टीचर्स का लेके और स्टूडेंट्स से जो हम करते हैं ना इनिशियल मैचिंग, वो करें, जी ताकि हमें इसमें वो
आप इफ यू हैव एनी प्रेफरेंस आप बताइए, आप उस पर काम शुरू कर सकेंगे। और फिर हम अभी ये काम फॉर्मली भी हमें करना है, मैंने मती को कहा था, वो शायद मिस आउट कर गए हैं। हमने 2 हफ्ते पहले इस मीटिंग में ये डिसाइड किया था, तो मैं जी आई विल एक्सलेट दैट। और हम सर, मेरा एक इरादा है प्रोजेक्ट बनाने का। मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसमें कि एक जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस सिस्टम है ना, वो मुझे नहीं पसंद आ रहा। ये वो उसका मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूजिंग रेस्पबेरी पाई जितनी भी लर्निंग की जो आपने सिखाई है, इन चीज़ों को सीख के मद्देनजर देखते हुए मैं यूनिवर्सिटी का एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ना, वो जैसे ही बंदा आएगा रिकॉग्नाइज्ड हुआ, साथ ही जैसे रिकॉग्नाइज्ड हुआ टाइम के साथ ही एक्सेल शीट के अंदर उसकी एंट्री होगी कि ये बंदा इस टाइम आया था और ये इसकी अटेंडेंस लग गई है। ना टीचर को ठीक ख्वारी काटनी पड़ेगी, वो सिर्फ आएगा ऑटोमेटिकली सिर्फ कैमरे के सामने डिटेक्ट होगा, जैसे ही डिटेक्ट होगा उसकी प्रेजेंट लग जाएगी। ठीक। जो होगा वो लग जाएगी, जो नहीं होगा नहीं होगी। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ अवर दिस डीप लर्निंग थिंग। हमने उसको कुछ उस शक्लों में किया है। अभी हमने जैसे एनिमल डेटाबेस में डॉग कैट और वो, लेकिन जी यही जी मामला स्पेसिफाइंग के नॉट ओनली डॉग बट विच डॉग पर है। जी और हम अपने इस कोर्स के अगले हिस्से में इसको एज ए ब्रॉडर वे में इसकी अप्रोच और वो भी शामिल है, डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी जी nice interesting application of what we are learning. So you can जी go ahead on this project. It's very interesting, relevant to the state of the art, and I think you have good capability to do it. So okay, ये मेरे थोड़ी सर सी माइंड में 3 सब्जेक्ट थे। एक फेस रिकॉग्निशन का था कि मैं फेस रिकॉग्निशन करूं। एक ये था कि सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम कार नहीं है वो बिल्ड करूं, कि वो सेल्फ खुद ही डीप लर्निंग करते हुए रोड को सेंस करते हुए जहां पे सिग्नल रेड है या फिर साइन बोर्ड आया हुआ है उसको सेंस करते हुए डीप लर्निंग के हिसाब से फिर अपनी खुद ही ड्राइविंग कार खुद ब खुद ड्राइव करे। अच्छा। और एक ये अटेंडेंस सिस्टम था। ये 3 मेरे दिमाग में ओके थे कि मैं इन 3 के ऊपर काम करूं। ओके, तो बोथ आर इंटरेस्टिंग। आप दोनों में से जो भी चूज करोगे इट्स रेलेवेंट, इंटरेस्टिंग, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार को अभी हम जो अभी कर रहे हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार ही की तरफ है, जो अभी रोबोट कार हम कर रहे हैं इसकी। जी जी इस या सेल्फ रोबोट के ड्राइविंग ऊपर सर कार के ऑलरेडी हम, मैं पहले काम कर चुका हूँ। मैं हाँ, रोबोट बना चुका हूँ। इसके हम मरहले आगे यही सेल्फ ड्राइविंग में ग्रो करेगी। तो जी यू हैव बिल्कुल। योर चॉइस। दोनों ही इंटरेस्टिंग है, दोनों ही जी एप्लीकेशन वाइज रेलेवेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो जी सर। आप यू कैन चूज एंड डू दैट फॉर योर FYP। ठीक हो चाहो गया तो सर। आप दोनों को। और सो आपका टाइम लॉस को सेव करने के लिए, जो कि आपका केस है कि आपका आपका लास्ट सेमेस्टर है। जी सर। सर असल में ना मेरा सिस्टम ऐसा है कि मेरी 3 कंपनीज है वो वेट कर रही हैं, ठीक है। उनको मैंने दिया था कि मैं जून जुलाई तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊंगा यूनिवर्सिटी से। हम्म, तो वो कह रही हैं कि आपने जो है जैसे ही फ्री हो आपने हमारे पास आना है। ठीक तो है। मैं अगर यहाँ पे फ्री हो भी जाऊं बट मेरा FYP जो है कंटिन्यू रहेगा, वो तो उस पर तो टाइम लग जाएगा ना सर। तो मैं चाहता हम्म, हूँ कि वो जैसी मैं यूनिवर्सिटी से फ्री भी हूँ साथ में मेरा ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ हो, तो मैं बस फ्री होके एक दफा उधर चला जाऊँ। मैं असल ठीक में है। चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा कैरियर ठीक है, अपना तो आप लेके चलूँ आगे, आप अभी वो बना लूँ। 7th सेमेस्टर में हो, ठीक है। जी सर जी सर। ओके, 7th में आपका फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, पार्ट 1 ऑफ द प्रोजेक्ट। और फिर जी 8th में FIP। पार्ट 2 आपका। तो ठीक है, अगर आप सही टाइम पे अभी शुरू करते हो और फुल वर्क करते हो, तो आप यू जी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन योर 8th सेमेस्टर एंड जी सर। get the thing cleared at the right time for you to join wherever you want. ठीक, तो सही हो गया। ठीक हो गया। दोनों अप्रूव है मेरे एंगल से, मैं दोनों को ओके और इंटरेस्टिंग समझता हूँ। यू मेक योर चॉइस, आई नो कि यू कैन डू
बोथ ऑफ ठीक हो देम सर, ये फिर मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कर लो। तो जोन सा फाइनलाइज हो हाँ गया तो फिर हाँ, मैं वो उसी पे बता मैं दो। काम करना दोनों स्टार्ट ही कर अच्छे दूंगा हैं, आज ही से। दोनों ही हाँ इंटरेस्टिंग है, तो आप बिल्कुल ये काम करो। हम अगरचे जी सर। वो पूरे क्लास के लेवल पर भी इसको मैंने कहा था मती को, और उनको कह दूंगा और वो दोबारा ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मगर उनके लिए शायद टाइम इतना क्रिटिकल नहीं है। सम ऑफ देम मोस्ट प्रोबेबली इवन इन द नॉर्मल फैशन दे हैव ओवरशॉट बाय वन सेमेस्टर हु डिड नॉट वर्क, जब हमारे नॉर्मल सेमेस्टर चल रहे थे, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। मगर आपके जी पास सर। टाइम नहीं है और आप ये चीज़ें इन टाइम ख़त्म करना चाहते हो, तो आप ये कर लो कि आप करना तो सर मेरे ख्याल से पूरी क्लास चाहती है, बट वो असल में कोई इंटरेस्ट नहीं आगे से शो हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इस अच्छा वजह से सारे भी चुप अच्छा, हैं। आप ये कर लो। आप जी सर। ठीक है, मती भी ये काम अपना करते रहेंगे। मती के काम में पहला डिले आएगा कि वो उनसे लेंगे सब लोगों से, टीचर से जी प्रपोजल, फिर रखेंगे, फिर ये करेंगे। ऑल द पीपल हु वांट टू बी इन टाइम इन द क्लास, वो डायरेक्टली मुझे बता दें और हम उनको गो हेड कर देंगे, ताकि उनका टाइम डिले ना आए इन दिस प्रोसेस ठीक ऑफ हो गया। मतीज स्टेज। ठीक है, तो ठीक वो हो गया सर, आप ठीक हो गया। मे बी के सर इस केस में हमारा फिर मैं अपना सुपरवाइजर खुद से सेलेक्ट कर लूँ फिर सर, अगर मैं करना चाहूँ हाँ हाँ ये प्रोजेक्ट। वो वो फिर अब ये जो प्रोजेक्ट होगा फिर मैं उन्हीं को कह दूंगा कि आप मेरे फिर सुपरवाइजर बन जाएं। प्रोजेक्ट मेरा हो गया, एचओडी ने मुझे ओके कह दिए, तो फिर उनकी तरफ हाँ से फिर वो मेरी तरफ, नहीं फिर मैं हाँ अपनी चॉइस से नहीं, फिर एक टीचर कर लूंगा जो सीएस का। सुपरवाइजर जो प्रोजेक्ट्स आईओटी और डीप लर्निंग और उन लोगों उन उस एरिया के हैं, जैसे आपने अभी जो दोनों बताए ये इस एरिया के थे, तो तो वो तो मैं डायरेक्टली उसको सुपरवाइज और ओके कर लूँगा। जो इन एरिया से हट के होंगे और वो दूसरे कोई डोमेन्स के होंगे, उनको हम देखेंगे कि वो कौन उसको करे। वो भी डिस्कस कर लेंगे और असाइन कर देंगे, और उस बंदे से को भी इन्वॉल्व कर लेंगे जो दूसरे टीचर हैं। ठीक है। सर असल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो सुपरवाइजर है वो सर अवैस को बनाना चाह रहा हूँ ना, कि वो मेरे सुपरवाइजर बन जाए। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आइडिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है ना ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी है और हार्डवेयर बेस्ड भी है, टू इन वन कंबाइन है, इनमें दोनों का वो है। तो वो थोड़ा बहुत अच्छे हैं, मैं उनको अपना एज अ सुपरवाइजर लेके चलना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी आईओटी और डीप लर्निंग, तो हम जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इन्हें यूज़ करके, और ये वाले प्रोजेक्ट जो दोनों आप बता रहे हो, ये तो आप यहाँ सीख रहे हो, और इसके लिए जी हमारे सर। पास हमने सारी हार्डवेयर भी एक्वायर की हुई है। तो ये जी सर। प्रोजेक्ट तो हम इन लाइंस पर चाहेंगे कि आप करें, ये जो हम करा रहे हैं आप। ठीक है। जी। हाँ सर अगर आप सेमेस्टर वो हाँ जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट। हाँ, ये तो प्रोजेक्ट्स क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, करवाएंगे, और पढ़ा जी। इसीलिए रहे हैं। तो ये तो आप जी। आईओटी और डीप लर्निंग के अगर कर रहे हो, तो वो तो फिर आप करोगे मेरे साथ, और उनकी अचीवमेंट और उनका स्टाइल और उनके सारी इस किस्म का होगा, लेवल ऑफ क्वालिटी, और ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे बिकॉज। हाँ, इनसे बियॉन्ड जैसे बहुत से लोग डेटा बेस वाले प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और इस तरह के, तो वो प्रोजेक्ट्स के लिए वी विल फाइंड द अदर एक्सपर्ट्स और रेलेवेंट सुपरवाइजर्स इनटू दिस एरिया। ठीक है। तो सर फिर इस केस में फिर मेरा सुपरवाइजर कोई और होगा? अगर आप ये दो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो जो आपने अभी डिस्कस किए हैं, तो जी। इस केस में तो आई विल बी योर सुपरवाइजर, क्योंकि ये दोनों जी आईओटी सर। और लर्निंग से रिलेटेड। जी। समझ नहीं आई सर, आवाज कट हाँ, की, दोबारा मैंने बताएं सर। बताया, ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स अभी आपने डिस्कस किए हैं, ये तो आईओटी और डीप लर्निंग से रिलेटेड हैं। जी। इन प्रोजेक्ट्स जी के लिए सर। आई विल बी द सुपरवाइजर, अच्छा आप ठीक हो गया। विलिंग टू जी सुपरवाइज यू। ठीक। कोई मेरे पास, ठीक है आई एम सर। नॉट दैट एचओडी हु डजंट टीच और हु डजंट सुपरवाइज द प्रोजेक्ट्स। ठीक, बाज़ दफ़ा ये ठीक हो होता गया है सर। स्टूडेंट्स को ये इशू के HODs are not either teaching or supervising the project, so they have to look around
टू फाइंड जी सर। पीपल, लेकिन हम तो पढ़ाते भी हैं और सुपरवाइज भी करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। जी तो कोई उसमें जी सर। मसला नहीं है। आई विल बी विलिंग टू सुपरवाइज यू। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे इस मेन थीम में चल ही रहे हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। अगर वो आप जी इन सर, वो मैं चीज़ों को जो अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह, पर देख रहा हूँ। हाँ, इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट करोगे, दे विल बी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो जी सर। आप इनमें से चूज करो और बताओ, और आप अपना काम ठीक फिर गो अहेड ले लो मेरे से और शुरू करो। और ठीक ताकि होगी कोई सर। डिले इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन बाय मती एक्सेट्रा हो तो वो आपका बच जाए, क्योंकि आपके लिए टाइम की जी क्रिटिकलिटी है। बाकी लोग शायद जी सर। स्टूडेंट भी और टीचर्स भी स्लो बैठे हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग बीइंग टोल्ड कि वो शायद वो हो रहा है कि चलो यार अब कोरोना के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो जी कर सर। लेंगे। जी सर। ठीक है ना? मगर आप चाहो तो इनमें से चूज ठीक करो होगी सर। और बताओ, अ- गो अहेड ले लो मेरे से। एंड ठीक होगी सर, इन एरियाज के इंशाल्लाह प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। हम इन लाइंस पे इस क्वालिटी के जो हम पढ़ा रहे हैं वो चाहेंगे और करवाएंगे। और इन एरियाज के प्रोजेक्ट मैं सुपरवाइज भी करूंगा, और कोई मसला नहीं जी होगा। सर। एज एचओडी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि जी हम खाली सुपरवाइज नहीं करते, हम करते हैं। ठीक है? जी सर। ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन। सर ये जो एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि आप हमें जो पढ़ा रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्या है कि आप कोड वाइज सेक्शंस करवा रहे हैं, थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा नहीं होता। बट एग्जाम्स जो होंगे वो आप हमसे एज अ कोड ही लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आप हमें प्रोजेक्ट ही देंगे। बट उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि वो बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ हो रही हैं, और हमें अभी इस पे इतनी ज़्यादा फुल कमांड तो नहीं है कि हमें वो सारे फंक्शनैलिटीज़ जो इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, वो हमें प्रॉपर तो नहीं याद होंगी। तो आया जब आप हमसे एग्जाम्स लेंगे, वो कोड के अंदर आप हमें चेंजेस करवा के लेंगे या फिर जो है बिल्कुल ही स्क्रैच से न्यू प्रोग्राम बनवाएंगे आप? हमारे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस ये वाला इस जो आपका जो आईओटी और डीप लर्निंग का जो अप्रोच है ना, वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पीडीसी एंड क्रिप्टोग्राफी। जी, वो इसमें मैं क्योंकि आपको दोनों इस दफा क्योंकि कैच नहीं कर पा एरियाज, रहा कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे वो जी पता जी, लग जाए ना, तो मैं उसके हिसाब से फिर अपन ट्रेन कर लूँ। अच्छा, क्योंकि एक बड़ा मेजर सा फर्क है हमारे इन कोर्सेज में वर्सेस दोज कोर्सेज। क्रिप्टोग्राफी। ठीक है जी ना? तो जब कोर्स की जी सर। नेचर बदलेगी तो उसके टीचिंग और लर्निंग और प्रोजेक्ट्स मेथड भी चेंज होंगे। अकॉर्डिंगली ही चेंज होने चाहिए, विच इज़ द राइट थिंग बिल्कुल। टू डू। जी सर। जैसे इसमें एक मेजर बड़ा चेंज आईओटी के पार्ट में ये है कि इट इज़ नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, इट्स जी। ऑल्सो हार्डवेयर। इसमें दोनों हार्डवेयर, का यस अपना सर, दोनों मेजर चीज़ें रोल हैं। है करने में। जी जी तो जी जाहिर है कि इसलिए हम आपको सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर और आउटपुट डिवाइसेस और वो सारों की, बल्कि यू मिस्ड लास्ट टाइम जब हमने इवन मोटर्स की वो वाली डिटेल के करंट की क्या रिक्वायरमेंट और ड्राइवर का क्या इशू है, ये मैं दोबारा अगले उसमें करा दूंगा। और अब आपके थैंक यू सर। प्रोजेक्ट्स में भी है, तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के करंट्स, वोल्टेजेस, इंटरफेसिंग वगैरह के पार्ट भी हमने इसमें सीखने ज़रूरी हैं। आईओटी उसके बगैर हो नहीं सकती। हम ये नहीं कह सकते कि जी आईओटी कैन बी ओनली प्रोग्रामिंग, बल्कि किसी भी फील्ड के बारे में, जिस तरह मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि किसी एक बेस पर के कोई कहे कि मुझे सॉफ्टवेयर का मैं एक्सपर्ट हूँ और बस, और या दूसरा हो वो कहे मैं हार्डवेयर का एक्सपर्ट हूँ और बस, इस इट इज़ यूजलेस। अब जो प्रेजेंट टाइम में कोई भी डिसेंट सिस्टम किसी भी फील्ड का आप बनाना चाहते, मेडिकल एरिया का आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप डीप लर्निंग के एरिया का करते हैं, आप आईओटी के एरिया का करते हैं, और इनफैक्ट अगर हमने अभी उस कोर्स के स्कोप में वो नहीं कर सकते थे सारा कुछ, आप साइबर जी सिक्योरिटी का करते हैं, आप पैरेलल प्रोसेसिंग का करते हैं। हर एक जी में आपको हार्डवेयर का नॉलेज और सॉफ्टवेयर का नॉलेज इंटीग्रेट करके जी इस्तेमाल करना पड़ता है। आईओटी एक बहुत ही
ऑब्वियस इस बात को हाईलाइट कर देती है कि आपने कोई भी सिस्टम बनाना है तो आपको दोनों नॉलेज चाहिए, लेकिन ये सब फील्ड्स में ऐसा ही है। तो जी इसलिए हम दोनों चीज़ें आईओटी में आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। तो हमारी अप्रोच ये है कि यू विल डू सम गुड प्रैक्टिकल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आजकल के हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको जी दोनों नॉलेज चाहिए होंगे उसमें। तो फोकस हमारा ये जी है बिल्कुल कि यू शुड डू इन, और अच्छा ये दोनों एरिया भी हॉट एरियाज हैं, आईओटी और डीप लर्निंग, और ये आपस में जी इनका आजकल ओवरलैप भी है आजकल ये चल कि आपको जी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर की ज़रूरत है वो आईओटी वाली आप डीप लर्निंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हार्डवेयर नॉलेज दोनों जगह काम आ गया। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट की नेचर पर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर करना और इंटीग्रेट करना दोनों में चाहिए। तो ये हमारा जो अप्रोच, जिस तरह प्रोजेक्ट्स कराने की आपको अप्रोच है, यही आपकी लर्निंग में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, यही हमारा टारगेट है। यही आपके प्रोजेक्ट्स के ग्रेडिंग या आपके एग्जाम्स की नेचर और आपके FYP के नेचर, ये सारी चीज़ें इसी लाइंस पर हैं, दैट यू शुड बी एबल टू बिल्ड सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग द जी नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द स्टेट ऑफ द आर्ट एरिया। ये हमारा इसमें। सर एक जी इसमें मैं भी ये चीज सबसे अच्छी है। मैं कहता हूँ एग्जाम्स की जगह ना आप हमें इसके अंदर प्रोजेक्ट्स करवाएं ना, क्योंकि ये चीज है टोटली प्रैक्टिकल चीज। एग्जाम इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल चीज। सही। प्रैक्टिकल चीज जब बंदा करता है ना, वो हम्म, बंदा लर्निंग ज्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में बंदा बिल्कुल नहीं सीख पाता, वो सिर्फ थ्योरी होती है। सही। बंदा एक प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है ना, उसके अंदर उसको डिफिकल्टीज सामने आती हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हाँ, फेस कैसे करना है, इसका हम्म, अल्टरनेटिव क्या है। तो हम्म, बंदे के दिमाग में याद रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम आएगी तो उसके माइंड में डायरेक्टली क्लिक होगा कि लास्ट टाइम मुझे इस प्रोजेक्ट में ये इस तरह का एरर आया था, ये प्रॉब्लम आई करेक्ट, थी, उसको करेक्ट, डिबग मैंने कैसे किया, तो वो सही। उसको उस टाइम ये हेल्प इसीलिए होगी। इसीलिए एग्जाम से आप ज्यादा ये देख प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए आप देख अगर रहे हैं कि हमारी तो सारी टीचिंग, लर्निंग, एवेल्युएशन प्रोजेक्ट बेस्ड है। हमने तो उस टाइम में जब इवन ऑनलाइन नहीं था, तब भी हमने प्रोजेक्ट बेस्ड सिंथ में जा रहे थे। प्रोजेक्ट बेस्ड उस वक्त हम इस तरह से गए थे कि हमने एम्फेसिस और रेशो प्रोजेक्ट्स का बढ़ा दिया था। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तब तो हमने चूज़ किया, कंप्यूटर साइंस वालों ने, कि हम एक सारी एवेल्युएशन अपनी एग्जाम्स की और अपनी असाइनमेंट्स की और क्विजेस की प्रोजेक्ट बेस हमने डिसाइड की। कुछ लोगों ने मुख्तलिफ डिसाइड की, बट वी वेंट फॉर दैट। और हम आपको सारा पढ़ाना, एवेल्युएट करना, प्रोजेक्ट्स देना, एग्जाम देना, वो सारे प्रोजेक्ट बेस हो रहे हैं, पास्ट जी में भी और अब भी। अभी आपने क्या किया है, डे वन से आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। और दे जी आर जी द रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपने, जाहिर है सारे लोग अभी लर्न करके कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले उसके जो पीसेस सीखने होते हैं वो सीखे हैं। जी और अब उन्हीं पीसेस को ज्वाइन करके ये जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार है या ये जो रोबोट कार है, जी इसको क्या किया, हमने इसके पहले पीसेस को पढ़ाया और सिखाया ब्रेक और जी उनके मिनी प्रोजेक्ट्स कराए कि यार जी एलईडीज तो बजर्स तो डिस्टेंस सेंसर तो मूवमेंट सेंसर्स और डिजिटल डिस्प्ले, ये हर एक को इंडिविजुअली एज ए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करना है। और जी फिर इस कार जी में सर वही सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ रही हैं, उधर से डीप लर्निंग का नॉलेज उधर से इसमें काम आ रहा है, और इस तरफ से जी आईओटी की सॉफ्टवेयर काम आ रही है। तो हमारा जी तो सारा थीम A to Z प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड है। बेस है तो एक तो ये होता है ना कि जी आप ये कहते कि सर प्रोजेक्ट्स भी हम करें, हम तो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कर ही प्रोजेक्ट्स रहे हैं। हाँ, समबॉडी कुड कम एंड कहे कि यार बाकी जगह तो थ्योरी बहुत होती है, थोड़ी और थ्योरी भी कराएं, वो तो फिर जी भी कोई डिस्कसेबल चीज थी। लेकिन हमारी तो जी अप्रोच ये है कि हम तो 100% प्रोजेक्ट्स पे चले गए हैं, स्पेशली जब ऑनलाइन हुआ तो 100%। पहले हम उसको बढ़ा रहे थे कि यार प्रोजेक्ट्स वगैरह का रेशो 5% होता था, तो हमने उसको 10, 20, 30 पे ले जा रहे थे उस डेज में जब ऑनलाइन नहीं था। जब से हमारा ऑनलाइन जी शुरू हो गया है तो हमारा तो हर चीज़ 100% प्रोजेक्ट बेस्ड हो गई है। तो जी इसमें तो
दैट्स द आइडियल। मतलब कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जिस तरह हम लास्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम वाला सिस्टम नहीं होगा अब इसमें, कि अब ये 100% प्रोजेक्ट बेस ही होगा सारा पूरा ओ कोर्स। ओ अच्छा, दैट क्लैरिफाइज टू मी। देखो भाई, ये मैं आपको सबको बता रहा हूँ, और आप अगर फील्ड्स में भी और कामों में जाओगे, जी देर इज नथिंग लाइक के प्रोजेक्ट्स मींस कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज के बगैर आप प्रोजेक्ट करोगे, इट्स नॉट नहीं, पॉसिबल। थ्योरेटिकल। हाँ, अच्छा। वो लोग होते हैं जो कोई डिग्री शिग्री ना करें और वो स्किल लेवल डेवलप जी होते हैं। जैसे लोग जी टेलीकॉम नहीं पढ़ते, मास्टर नहीं करते, बीएस नहीं करते, पीएचडी नहीं करते, और जी वो सीसीएनए और ये करके दे बिकम टेक्नीशियंस एंड डू वेल इन दैट लिमिटेड वे, कि वो बहुत जी अच्छा कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसको, राउटर को, क्योंकि उनको लो जी लेवल इंस्ट्रक्शंस की पता है और वो बड़े तेज होंगे, बट दे आर टेक्नीशियंस। जी Learning a tool or learning a small thing is doesn't make you then engineer. आप फिर ना इंजीनियर और रिसर्चर या स्पेशलिस्ट या डिजाइनर नहीं बनते। डिजाइनर ठीक बनने हो के गया। लिए आपको साउंड तमाम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को समझना, सीखना, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना, और उसको खला कहाँ रहता है कि बाज़ लोग सिर्फ एंड ही, स्टार्ट से एंड, जो हमारी मेजर टीचिंग में है सारी जगह, कि वो ठीक हो एंड गया और सर। स्टार्ट और एंड ही उस पर कर देते हैं, कि उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें जी बता दी सिर्फ थ्योरी में। बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि यू मस्ट एज इंजीनियर्स एंड रिसर्चिस्ट learn thoroughly the theory behind it. That is what you will give you an edge, and then thoroughly practically apply it to make systems. Then you are a useful person, otherwise you are a technician. आपको यार, मैं ये जो आपका कारपेंटर और ये सब लोग हैं, दे आर गुड आर्टिस्ट, दे कैन डू देयर जॉब वेल, लेकिन जब जब इवन आप देखें, आपकी ये जो फर्नीचर है, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय चाइनीज। ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते थे, दे हैव बीन टेकन ओवर चाइनीज, क्योंकि डिजाइनिंग, इनोवेशन, अल्टरनेट स्टडी बैकग्राउंड, डिजाइन, वो सारा कुछ हमारे उसमें बेचारे में मिसिंग था। जी इसी तरह जब हम अपने सिस्टम्स एयरफोर्स वगैरह में करते हैं, तो एक हमारा टेक्नीशियन लेवल होता है, जो ये नहीं, जो टेक वो करके आते हैं, ये जो क्या होता है टेक्निकल, degree? हाँ, अच्छा, वो वो हमारे सर बी टेक्नीशियंस टेक हैं, एम वो टेक बड़े वगैरह। जबरदस्त लोग होते हैं। और एक जमाने जी में एयरफोर्स ने सोचा कि यार, एयरफोर्स इज रन बाय देम। द मोमेंट उनके उस घिसे पिटे सिस्टम से जरा सी भी एडवांसमेंट आई, वो फ्लैट हो गए, उन्होंने हैंड्स अप कर जी दिया। सबने कहा यार, आप तो एयरफोर्स चला रहे थे। उन्होंने कहा सर, ये जो अब नया चेंज तो मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता था कि ये जो एक इक्विपमेंट मैं रख रहा हूँ, इसको इस जगह हाथ मारता हूँ तो चलती है, इस जगह ठुड्डा मारता हूँ तो चलती है, यहाँ से प्रेस करता हूँ तो चलती है, मैं तो इसकी कल कल से वाकिफ हूँ। सारे लोग तो जी सोचते थे यार आप चला। जैसे ही F-16 और ये आना शुरू हुए, तो फिर इंजीनियर केम इन द लाइमलाइट। उन्होंने कहा यार, किधर गए इंजीनियर, ढूंढो उन्हें, एंड दे बिकेम। जी तो आपने इंजीनियर और साइंटिस्ट के साथ प्रोजेक्ट करने हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट्स आए, नए फील्ड्स आए, नए डेवलपमेंट्स आए, नई रिसर्च आए, तो आप उसको लेके आगे चल सको। जी आपने टेक्नीशियन नहीं बनना। समझ टेक्नीशियन गया सर। आप शॉर्ट टाइम के लिए उन चीज़ों को भी इसलिए करते हो कि जब कल आपने टेक्नीशियन को लीड करना हो तो आप उसको गाइड कर सको, बट दैट इज नॉट समझ योर गया एंड ऑफ द स्टोरी। यू हैव टू डिजाइन थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। सर। गॉट इट सर। ऑल राइट, ओके। मेरा ख्याल है ये लोग अब हमारी लैब के लिए नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, आज लैब नहीं है हाँ, सर। लैब तो उस पे जाएगी। हाँ, आज लैब नहीं, लैब कल ओके है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर तो जी यू कल कैन, लैब। अगर आपने और कुछ डिस्कस करना है, दीज आर द थिंग्स जो आप सबको इस स्टेज पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जी लोग खसूसन जो 7-8 सेमेस्टर वाले हैं, उनके लिए हम ये वरीड होते हैं कि यू आर टू बी लॉन्च इन टू द फील्ड, और हमारा जी उसमें अच्छा या बुरा नाम यूनिवर्सिटी का भी, और आप लोगों के साथ हमारी सर्विस भी है कि यार, इफ़ यू स्पेंड मनी, come to some university, so you become a fruitful person and make your edge in the market, to जी earn respect and money and all that, ठीक, और that will जी make us सर also जी। happy. तो आपने गॉट। कभी ये नहीं सोचना कि यार मैं खाली प्रैक्टिकल जानता हूँ। नो नो, नेवर। इंजीनियर और रिसर्चर और डिजाइनर कभी दोनों 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 चीजें। बड़ी स्ट्रांग होते हैं दोनों में।
तब जाके जी होगा। अगर वो कहे यार वो, तो फिर आप यू विल कीप लॉट ऑफ पीपल अंडर यू जिनको डिजाइन और वो कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं आती, और आप उनको एक छोटा सा काम दोगे, वो एक्सेल करेंगे उसमें, वो आपका बहुत जबरदस्त वो काम करके आपको देंगे। बट द बिगर जी पीपल नो वेरी साउंड overall structure level thing, architecture level thing, design level thing, choices level thing, and then know how to implement them successfully. ये है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। ओके, ठीक हो गया सर, एनी अदर ठीक हो क्वेश्चन? गया सर। तो आप वो, बस यही 2 क्वेश्चन थे, जी एक एफआईपी का था। मैं कह रहा हूँ बस यही 2 क्वेश्चन थे, एक एफआईपी का था और एक ये पेपर्स का पूछना था ओके, कि ये किस बेस पे होगा। बिल्कुल इसी तरह जो हम जिस तरह जी पढ़ा रहे हैं और प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, इसी तरह हमारे एग्जाम्स भी होंगे और होते हैं। जी दोनों ठीक चीज़ों को वो करके शामिल, और ऐसे ही हमारे मिड टर्म, इसी तरह फाइनल, और इसी तरह हमारे तमाम असाइनमेंट्स सर। विच आर हाँ, देयर। अभी तक तो सर मिड टर्म हुए ही नहीं है, इसका कोई जी प्रोग्रेस हुआ यूनिवर्सिटी में कि अभी तक हाँ कोई नहीं हुआ सर। हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो ये वो वाला फरवरी में जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो वी जी होप कि अब यूनिवर्सिटी को ये है टारगेटेड कि वी शुड बी एबल टू गेट ऐसे लोग जो प्रैक्टिकल लैब्स और प्रोजेक्ट्स और बेस्ड लैब्स हैं जिनकी, जैसे बाज़ दफ़ा जी इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसी लैब्स होती हैं, हमारे केस में ये जी दोनों लैब्स ऐसी हैं कि जिनमें हमें हैंड्स ऑन करना है, तो उन्हें हम जी सिलेक्टिवली बुला लें और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लैब्स वहाँ कराएं और फिर वहीं उनका हैंड्स ऑन एग्जाम्स ले सकें। तो ये हम जी अच्छा बिल्कुल सही, कर रहे हैं इसके बिल्कुल लिए। सही हो गया। ठीक, ओके और सर। हमें नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। ये जो गवर्नमेंट ने फरवरी का एक अलाउंस दिया है, हम उसको प्रेस कर रहे हैं टू द यूनिवर्सिटी। पर सर हमारी वो तो बात ठीक है, पर यूनिवर्सिटी जो अभी रिसेंटली देख कर रहे हैं उसकी तो कंडीशन सर अभी वो तो है ही नहीं उस तरह की जिस तरह के स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। उसको हम ये कर रहे हैं कि जो पहले भी एचईसी ने किया हुआ था, हम उसको भी अवेल करना चाह रहे थे, और अब गवर्नमेंट का जो एक पाबंदी थी उसकी ख़त्म होने से, तो हम अवेल ये करेंगे कि वो जो था कि जी आप हाइब्रिड में सिलेक्टिव के जो जो बहुत हैंड्स ऑन टाइप चीज़ें हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को आप बुला लें, तो हम उस फैसिलिटी और ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्टिव लेवल पर वो फैसिलिटीज़, जैसे अभी फैकल्टी और वो लोग वहाँ जाते हैं, उनके लिए लिमिटेड वे में जो अरेंजमेंट है उससे बेनिफिट जी करेंगे। ऑल ऑल स्टूडेंट्स के लिए अभी इट सीम्स के दे आर नॉट रेडी, मगर फजल माइक सिलेक्टिवली, म्यूट कर दो प्लीज, हाँ सिलेक्टिव शोर आ रहा है। लेवल पे ये फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स जी सी, ठीक हो दैट गया शुड सर, हैपन, दैट शुड हैपन सून। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया ऑल सर, राइट, ओके हो गया ऑल सर, राइट, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो अल्लाह हाफिज, मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।